Okay. The very first question that we have here is this is the worksheet which we'll do from 22 to 25, which means radioactivity till space physics. I've added only a few questions of radioactivity as well, so that a little bit of revision of that topic could be done as well. First question is rechargeable battery contains lithium. The lithium exists as a positive ion. How does an ion of lithium differs from an atom of lithium? अब obviously ion है, so वो positive या negative होगा. उसने positive already बता दिया है. And atom of lithium जो होता है वो क्या होता है? Neutral होता है. We have to look for the options जहाँ पे ये option discuss हुआ है. The ion has fewer electrons orbiting the nucleus. Okay, that is a possibility because positive ion है तो उसने electrons lose किए होंगे. The ion has more electrons orbiting the nucleus. No, that's wrong because more electrons होते तो उस पे कौन सा चार्ज होना था? नेगेटिव। अब्दुलरहमान. Yes. The nucleus of an ion has less charge. अगर उसके पास less charge होगा न्यूक्लियस, जब हम आयन फॉर्म करते हैं तो न्यूक्लियस हैज नथिंग टू डू विद दैट. ठीक है. न्यूक्लियस सिर्फ रेडियोएक्टिविटी फिनोमेना के अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं. लिविंग अस विद ओनली राइट ऑप्शन विच इज ऑप्शन नंबर ए, that it has fewer electrons orbiting. Then we have 56 and 26. उसने कहा which statement of the nucleus of iron nuclides are correct? They contains 56 neutrons. No. The nucleon is 30. Nucleon is not 30. Nucleon is 56. Because nucleons mean proton and neutrons together. Okay? Always keep in mind that nucleons mean proton and neutrons together. And proton is 26. So the only right option is option number 3. So we'll go with that. Then we have what is the source of an artificial background radiation? X-ray machine in a hospital? Yes, it is. Radon gas from rocks. रेडॉन गैस रॉक से ओके आती तो है वैसे, लेकिन वो रॉक से नहीं आती, वो ग्राउंड से आती है. Cosmic rays from the sun, plants, and other living organisms. No, cosmic rays is not responsible for that, leaving us with only one right option, which is option number. Artificial source उसने पूछा हुआ था. ठीक है. Let me be clear about that. They have asked us about the artificial source. बाकी सब क्या है? Natural resources हैं. Okay, that is why we're going with that option. Then we have simple of radioactive stuff has an initial rate of emission 128 counts per minute and a half-life of 4 days. How long will it take for the rate of emission to fall to 32? अब ये वो वाला क्वेश्चन था जिसमें हम उसको सपोज्ड फॉर्मूला क्या होता है हाफ लाइफ का, n over 2 raised to power n. हम इसको क्या करेंगे? सपोज्ड पावर से डिवाइड करेंगे, दैट वी गेट 32. चेक करो किस पावर पे आता है ये. 32 आंसर 2 रेज टू पावर 3 पे शायद आएगा. किसी के पास कैलकुलेटर भी है कि नहीं? मेरे पास तो नहीं। पावर 2 पर ही आ रहा है 32 तो। 2 पावर पे आ रहा है. जी। लेट मी सी. 128 divided by 4 is 32. Okay, which means number of half lives कितनी है? 2. 8। और हमारे पास 2 नंबर ऑफ हाफ लाइव्स 2 1. 8 तो नहीं है. और हाफ लाइफ इज 4 डेज. सो हमने डिस्कस किया था कि अगर उसने टाइम फाइंड आउट करने को बोला होता है, हाफ लाइफ उसने क्वेश्चन में मेंशन आउट की होती है, तो हम नंबर ऑफ हाफ लाइफ एंड हाफ लाइफ को मल्टीप्लाई करके आंसर्स निकालते हैं. सो विल हैव ऑप्शन नंबर सी. देन approximately how long does it take for the moon to take one complete rotation? कितना टाइम लगता है उसको? That was an easy one. 1 month. The sun has a mass of this factor which element accounts for most of this ion? हाइड्रोजन. कल ही हमने डिस्कस किया था कि फ्यूल हमारे पास क्या होता है? H2. एंड प्रोडक्ट क्या होती है?
HE. The nearest star to Sun is Proxima Centauri. कल ही डिस्कस किया at a distance of 4.2 light years. We discussed it yesterday. Telescope images of Proxima Centauri show it was 4.2 years. Okay. बिकॉज वो हमारे पास टेलीस्कोप होगा, हमारे उससे वहां से रेज होंगे, डिस्टेंस मेजरमेंट होगा, थीटा एंगल्स होते हैं जो बेसिकली फाइंड आउट किए जाते हैं उसके हिसाब से टेलीस्कोप्स की हेल्प से ना एंगल्स होते हैं, देयर आर सर्टेन एंगल। दैट इज नॉट द स्कोप ऑफ आवर सिलेबस कि हम उसको इतने डिटेल में डिस्कस करें, बट यस वी कैन गेट द आइडिया कि वो एंगल ऑफ एलिवेशन आप लोगों ने पढ़े हुए हैं ना मैथ्स के अंदर, एंगल्स ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन, वो टेलीस्कोप की हेल्प से उसको उसके थ्रू भी फाइंड आउट होते हैं वो। If a spacecraft near Proxima sent a radio message to the Earth, it would take 4.2 years to arrive. Proxima Centauri is outside the Milky Way galaxy. नहीं, nearest star है तो मिल्की वे से तो नहीं होगा हमारे पास, तो लिविंग अस विद ओनली ऑप्शन नंबर 1 and 2। ये ऑप्शन समझ में आ गया? पॉइंट ऑप्शन नंबर 1 सबको समझ में आ गया? Yes. स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल किसकी वजह से होता था हमारे पास? अल्फा पार्टिकल्स आर यूज्ड रादर देन न्यूट्रॉन्स बिकॉज वो ट्रेवल फास्टर करते थे या वो हेवियर होते थे? Because they have a positive Heavier. charge, because they are larger in diameter. The scattering of alpha particle by a thin metal foil supports the nuclear model. Nuclear model की support उसके positive charge की वजह से थी. So we'll go with this option. Option number D, because alpha particles had a positive charge. एवरेज ऑर्बिटल स्पीड के बारे में पूछ रहे हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा था 2πr/t के इक्वल होता है। सो हमें कौन कौन सा डिस्टेंस चाहिए होता है? पीरियड ऑफ रोटेशन तो हमें चाहिए ही होगा, ऑफ द प्लैनेट नहीं हमें चाहिए, टाइम पीरियड सेट टू ऑर्बिट द प्लैनेट हमें चाहिए, यस। एंड डिस्टेंस ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द प्लैनेट, यस। बस ये दो चीजें ही चाहिए होती हैं। बस कल हम लोगों ने डायग्राम की थी ना कि if this is the earth and this is the satellite, तो सेंटर ऑफ द प्लैनेट से सैटेलाइट टाइप का डिस्टेंस जो होता है वो आर होता है, ये वाला आर, एवरेज ऑर्बिटल रेडियस। और हम एवरेज क्यों लेते हैं ये भी कल डिस्कस किया था। क्यों लेते हैं? बिकॉज हमारे पास जो ऑर्बिट्स होते हैं वो एलिप्टिकल होते हैं, सर्कुलर नहीं होते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी, रेस्ट ऑफ द थिंग्स वी डू नॉट रिक्वायर एज द फॉर्मूला टेल्स अस टू। Then we have the energy generated in a stable star comes from a nuclear reaction. What is that nuclear reaction? अब्दुल रहमान, स्टेबल स्टार कौन से न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से स्टेबल होता है? Fusion. नहीं, व्हाट इज दैट रिएक्शन कॉल्ड? Nuclear fusion. हम्म, Fusion reaction. यस, फ्यूजन रिएक्शंस होते हैं। तो फ्यूजन रिएक्शन में हमारे पास क्या होता है? फ्यूजन रिएक्शन में हमारे पास होता है टू एटम्स फ्यूज टुगेदर। To सो form one large. हाइड्रोजन, यस, ड्यूट्रियम कंबाइन होंगे और हमारे पास क्या आएगा? हीलियम आएगा, साथ में एक न्यूट्रॉन आएगा। तो दैट वाज द रिएक्शन फॉर फीन रिएक्शन। तो हीलियम ज्वाइन टुगेदर, पहले में उसने ब्रेकअप बोला हुआ है, और वो ब्रेकअप जो है वो किस में होता है? फिशन रिएक्शन में होता है। न्यूक्लियस ब्रेक्स into smaller nuclear। देन हबल्स कांस्टेंट के बारे में बात हुई है। हबल्स कांस्टेंट को विदाउट इवन रीडिंग द क्वेश्चन, हमने हबल्स कांस्टेंट के थ्रू क्या, हमें एक तो उसकी वैल्यू पता है,
क्या होती है? 2.2 इंटू 10⁻⁻18 सेकेंड्स। तो ये ऑप्शन नंबर ए एंड बी में दोनों में वो वैल्यू आ रही है। अब हमने क्या पढ़ा था कि v इज प्रोपोर्शनल टू d या v इज प्रोपोर्शनल टू 1/d? हफ्सा, V is proportional to D. तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास? ऑप्शन नंबर ए। Then the result of scattering experiment doesn't vary. What is scattered in the gold foil experiment में क्या, रदरफोर्ड मॉडल में क्या स्कैटर हुआ था? gold nucleus. अल्फा पार्टिकल्स। किसी में लग रहा है हीलियम न्यूक्लियाई बोला है। वही किसने बोल रहा बोला है? ऐसा ही बोला है ना? मैंने हूँ गोल्ड अमलान। बोला, गोल्ड बोला, गोल्ड। मेरा माइक थोड़ा वो हो रहा है, डिस्टर्ब गोल्ड हो रहा है। न्यूक्लियर बोल। ओके। एटम्स पी एंड क्यू आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स। हमें पता है आइसोटोप्स में क्या होते हैं? सेम प्रोटॉन नंबर, डिफरेंट न्यूक्लियॉन नंबर। सो विल जस्ट गो फॉर दैट ऑप्शन जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं एंड प्रोटॉन नंबर्स क्या होते हैं? सेम। तो ऑप्शन नंबर सी। अल्फा पार्टिकल्स के बारे में डिस्कस हुआ हुआ है। व्हेन इट कम्स टू अल्फा पार्टिकल्स, हमारा एटॉमिक मास डिक्रीजेस बाय 4 एंड एटॉमिक नंबर रिड्यूसेस बाय 2। और उसने ऑप्शंस यही दिए हुए हैं कि उसमें हमें देखना है। तो डिक्रीजेस बाय 2 एंड डिक्रीजेस बाय 4 व्हेन अल्फा न्यूक्लियस इज एमिटेड। सो कौन सा ऑप्शन आएगा हमारे पास? ऑप्शन नंबर ए। बिकॉज एन अल्फा पार्टिकल इज एमिटेड द न्यूट्रॉन सॉरी nucleon number reduces by 2 and proton number reduces by sorry nucleon number reduces by 4 and proton number reduces by 2। थिकनेस के लिए हम कौन सा पार्टिकल यूज करते थे? ये बुक में भी हमारी एग्जांपल दी हुई है। टू चेक द थिकनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हफ्सा। Beta. वाई आर बीटा पार्टिकल्स यूज फॉर दिस पर्पस? सॉरी, उसने रीजन पूछा हुआ है। पहला ऑप्शन है कि अल्फा पार्टिकल इज स्टॉप्ड बाय द पेपर। ओके, दिस इज करेक्ट। अल्फा पार्टिकल मेक्स द पेपर रेडिएक्टिव। नो। गामा रेडिएशन इज ऑल स्टॉप्ड बाय द पेपर। नो, गामा इज द मोस्ट वो तो लीविंग अस विद ओनली राइट ऑप्शन है ही, इसमें सिर्फ एक है। कॉज बीटा पार्टिकल्स यूज करने का रीजन ये होता है कि अल्फा पार्टिकल कुड बी स्टॉप्ड बाय द पीस ऑफ पेपर। एंड गामा को ना यूज करने का रीजन क्या होता है कि बिकॉज गामा पार्टिकल्स कुड पेनिट्रेट थ्रू एनीथिंग एक्सेप्ट लेड। देन उसने हमें डिस्कस किया हुआ सिंपल ऑफ tritium has a mass of this, the half life is 12 years, how much? अब उसने टू टाइम पीरियड्स दिए हुए हैं, तो हम बिगर टाइम को स्मॉलर टाइम से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितनी आ जाएंगी? 3, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, 3 आएगा। एंड इनिशियल काउंट रेट उसने दिया हुआ विच इज 32। 32 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर 3 विच इज नंबर ऑफ हाफ लाइफ। सो 32 डिवाइडेड बाय 8 वुड गिव अस 4। ओके। It takes 27 days for the moon to orbit this Earth. The average value of the radius for the moon is this. क्या फॉर्मूला यूज करेंगे हफ्सा? 2 pi r over T. आर की वैल्यू उसने हमें कितनी दी हुई है? 3.8 × 10⁻8। डू वी नीड टू कन्वर्ट एनीथिंग? टू कन्वीनियंस चाहिए हमें? डेज को सेकंड में करें। हाँ जी, डेज को सेकंड में। 27 डे इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60। By putting it in the equation, we'll get the answer as हैं? V. We are getting 1023, so which could be approximately equals to 1000। अगर ये 50 से above होता तो 1200 की अगर कोई ऑप्शन गिवन होती या 1100 की गिवन होती तो हम उसको चूज करते हैं। So we have this option
एंड व्हाट इज द न्यूक्लियर रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस इन अ स्टेबल स्टार? कौन सा रिएक्शन होता है इब्राहिम? चला गया वो वापस। क्यों, उसका पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है? पता नहीं। Okay. The result of the alpha particle scattering experiment give evidence for which of the following? Did it tell us कि nuclear fusion reaction हो रहा है, reductive decay है, existence of isotope, या size of the nucleus का पता लगा था हमें scattering of particles की वजह से? इतना सोचने वाला सवाल तो नहीं था वैसे। साइज ऑफ द न्यूक्लियस के बारे में पता लगा था हमें विद दैट। अच्छा जी, नेक्स्ट उसने हमें प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन पूछे। में प्रोटॉन इज 27 एंड 59 माइनस 27 would give us 32, so option number A. And the electrons in the neutral atom, 79 प्रोटॉन्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स में कितने होंगे हफ्सा? नहीं होंगे। हैं? स्टेबल एटम के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स बराबर नहीं होते, नहीं होते वाला लॉजिक हमने सीधे कब बोले पढ़ा था? उतने ही होंगे। मैंने कहा है उतने ही होंगे। अच्छा। अच्छा, विच टाइप ऑफ रेडिएशंस आर एमिटेड बाय, अब उसने हमें तीन चार रीजनिंग्स दे दिए में कि 450 से नो शीट इंसर्टेड पे 450 थे, थिन शीट पे 381 थे, थिन लेड शीट पे 285 थे, एंड थिन पेपर शीट के ऊपर 452 थे। सो विच इज द पॉसिबल, कौन कौन से पार्टिकल्स पॉसिबली एग्जिस्ट कर रहे होंगे वहां पे? गामा एंड बीटा रेडिएशन ओनली। उसका रीजन ये है कि थिन शीट से नो शीट एंड थिन शीट के ऊपर कोई इतना पर्टिकुलर चेंज नहीं आया हमारे पास। ठीक है, इवन व्हेन नो शीट वाज इंसर्टेड तो 450 का रीडिंग था, थिन शीट पे 452 था, विच माइट बी द बैकग्राउंड रेडिएशंस प्रेजेंट। दैट्स हाउ वी न्यू कि अल्फा पार्टिकल स्टार्ट से ही अवेलेबल नहीं थे, क्योंकि अगर अल्फा पार्टिकल अवेलेबल होते तो हमें एक सिग्निफिकेंट ड्रॉप इन द रीडिंग जो था वो अवेलेबल होना था वहां पे। Which particles causes the nuclear fission reaction? कौन सा पार्टिकल फिशन रिएक्शन अकर करवाता है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन। अच्छा, तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ मॉडरेटर इन द न्यूक्लियर रिएक्टर्स? मॉडरेटर का क्या फंक्शन होता है? टू स्लो डाउन द न्यूट्रॉन्स का भी ऑप्शन हमारे पास कहाँ पे है? और कंट्रोल रॉड्स का क्या काम होता है अफसा? एब्सॉर्ब करना। हाँ जी, कंट्रोल रॉड्स जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं, मॉडरेटर्स जो है वो स्लो डाउन करते हैं न्यूट्रॉन्स को। In which region of the electromagnetic spectrum does the sun radiate the most energy? हमने बहुत दफा पढ़ा हुआ है infrared radiations। And a stable star की formation है, four of the stages in the life cycle of a star until it becomes a red giant are shown. Inward force of gravitational attraction is balanced by the outward force from its center. Uh, In which order do these stages occur? Internal gravitational collapse produces an increase in temperature. It expands, and most of the hydrogen have been converted to helium. तो सबसे पहले तो हमारे पास कौन सा आएगा? सबसे पहले ये होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से हमारे पास इनवर्ड और आउटवर्ड प्रेशर जो है वो इक्वल होता है। देन कन्वर्ट होता है हाइड्रोजन इनटू हीलियम, एंड लास्ट में हमारे पास एक्सपेंशन आती है। सो विच वुड बी द राइट ऑप्शन? डब्ल्यू, एक्स एंड वाई एंड जी। अब हाफ लाइफ का एक क्वेश्चन है
इसमें अगेन उसने हमें 2 टाइम पीरियड्स दिए हुए हैं एंड काउंट रेट उसने हमें दिया हुआ है। ये 12 मिलीग्राम्स दिया हुआ। So 860 divided by 430 is approximately equals to 2, and formula n over 2 raised to power n. N is 12 mg and 2 to the power of 2. So क्या आ जाएगा हमारे पास 3। अब क्लोजेस्ट टू द सन कौन सा स्टार है हमारे पास? Which star is the closest to the sun? Proxima Centauri. अरे सन के, वो तो नियरेस्ट हमारे पास स्टार दूसरी टर्म्स में है। मर्क्यूरी होगा। यस, मरकरी। एंड फिर मरकरी के इन बिटवीन हमारे पास क्या आएगा? वीनस। एंड फर्देस्ट हमारे और पास कौन सा आएगा? अर्थ। 3 क्लोजेस्ट प्लैनेट्स के बारे में उसने बात की है, दैट इज वाई हम लोग करीब करीब ही रह रहे हैं और हम लोग उसमें नहीं जा रहे, यूरेनस और नेपच्यून्स में नहीं जा रहे। ठीक है, उनके सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली हम लोग लिख रहे हैं। लाइट ईयर हमने कल भी डिस्कस किया था, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। एंड टाइम उसने कैलकुलेट करने को बोला हुआ है, उसने स्पीड हमें दी हुई है एंड डिस्टेंस दिया हुआ है। सिंपल स्पीड का फॉर्मूला लगा देंगे। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर स्पीड। डिस्टेंस इज 7.8 into 10 raised to power 11 divided by 3 into 10 raised to power 8. So this would give us an answer of 2.6 into 10 raised to power 3 seconds or 2600 seconds. न्यूक्लियर फिशन के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। उसने हमसे पूछा हुआ है कि व्हाट इज न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन हमारे पास, तो वो हमने डिस्कस किया हुआ है पहले भी। एंड हमारा मेन कंसर्न है स्पेस फिजिक्स और उसको डिस्कस करना। ये ड्यूट्रियम वाली क्वेश्चन हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर ली हुई थी कि हाउ डू वी गेट ड्यूट्रियम। ड्यूट्रियम का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन का, उसमें एक प्रोटॉन एंड एक न्यूट्रॉन है, giving us helium-3 and 2 plus 1 neutron. Balance equation 1 and 1 2, 2 and 2 3, and 3 plus 1 4. Average speed calculate करने को भी दी हुई है। We have distance, we have time. तो अगेन हमें सिर्फ कन्वेंशन करनी है। 2 pi r which is 2.28 किलोमीटर्स में, तो मीटर्स में जाएंगे तो 3 पावर इसमें ऐड हो जाएगी, तो ये 10 रेज टू पावर 11 हो जाएगा। And 690 into 24 into 60 into 60. This would give us an answer of 24,000 meter per second or 24 kilometers per second. 3 points backward ले गए, 24 into 10 raised to power 3 meters per second हो गया, जिसको किलोमीटर्स पर सेकंड में लिख दिया। स्टेट द शेप ऑफ द ऑर्बिट्स ऑफ द प्लैनेट्स। क्या शेप होती है हमारे पास? वी हैव एलिप्टिकल शेप। एंड रेड शिफ्ट का मतलब क्या होता है? कल ही हमने डिस्कस किया था। लेफ्ट इंक्रीज इन ऑब्जर्व्ड वेवलेंथ showing showing galaxies are moving away from us. गैलेक्सीज भी कह सकते हैं कुछ भी, planets, anything, galaxies are moving away from us.
quantity that the redshift of the galaxy is used to calculate, that would be velocity. अच्छा, इसको मल्टीपल टाइम मैंने एक्सप्लेन किया कि redshift इज ऑलरेडी वेवलेंथ, तो वेवलेंथ को छोड़ के जो दूसरी चीज होती है हमारे पास कौन सी आ गई है, वो वेलोसिटी ही होती है। बिकॉज हबल्स कांस्टेंट और रेड शिफ्ट हमारे पास आ गया, तो उससे हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, बिकॉज एच इज इक्वल टू वी ओवर डी होता था। रेड शिफ्ट से हमारे पास डी आ जाएगा, हबल्स कांस्टेंट ऑलरेडी कांस्टेंट, लीविंग अस विद ओनली वन क्वांटिटी विच इज वेलोसिटी। अक्सर ये डिबेट का रीजन बनता था कि कौन सी क्वांटिटी रेड शिफ्ट हमें कैलकुलेट करती है, वो इस फॉर्मूला की बेसिस के ऊपर कैलकुलेट करने का हमारे पास रीजन आता है। देन अच्छा, ये ग्राफ एक कर लेते हैं। उसने हमें काउंट रेट, इनिशियल काउंट रेट 1600 दिया हुआ है। हाफ लाइफ उसने हमें कितनी दी हुई है, 6000 ईयर्स। दैट इज आफ्टर 6000 ईयर्स 1600 का हाफ कितना होता है, 800। तो हमारे पास ये पॉइंट आ जाएगा। 800 का हाफ कितना होता है, 400। एंड 6000 का नेक्स्ट क्या बनेगा, 12000। तो ये पॉइंट आ जाएगा। एंड 12000 के अंदर 6000 ऐड करें तो कितना बन जाएगा, 18000। तो वो बनेगा यहाँ पे। एंड 4000 का हाफ कितना होता है, 12। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक ग्राफ, कर्व्ड ग्राफ आ जाएगा। एंड व्हाई डू वी गेट कर्व्ड ग्राफ, कॉज रेडिएक्टिविटी क्या है, इज रैंडम। एंड बैकग्राउंड रेडिएशन की वजह से वी गेट अ डिक्रीजिंग, एक्सपोनेंशियल डिक्रीज आता है हमारे पास, rather than a constant डिक्रीज। अब उसने कहा है कि रेडिएशंस को कैलकुलेट करने के लिए हम कौन सा अपरेटस यूज करते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द अपरेटस, हफ्सा। नाम भूल गया सर उसका मुझे। गीगर मोलर काउंटर। स्पेलिंग मुझे भूल गए तो सबसे मैं यही लिख रहा हूँ, गीगर मोलर। अक्सर होता है। टोटली स्किप्ड आउट ऑफ माय माइंड। मुझे पूछा हाउ द अपरेटस इज मेजर्ड, वो कैसे कैलकुलेट करता है। तो हमें पता है कि हम रेडियो एक्टिव सोर्स को उसके सामने रखते हैं पहले, सॉरी, वी turn it on to measure background radiation, and second हम क्या करते हैं, sample in front of it, then after subtracting background radiation, आई थिंक सो इतनी डिटेल हमें जाननी नहीं चाहिए, सिर्फ 2 मार्क्स का है। बस हम इतना लिख देंगे, आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग बैकग्राउंड रेडिएशन इट शोज अस द रीडिंग। अच्छा, ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये हम लोगों ने ऐसे डिस्कस तो किया कि हमारी बुक में भी है, रेडियो एक्टिव रेडियो कार्बन डेटिंग के अंदर। इसने कहा है हाउ the count rate from the sample of the wood is used to find its age। तो हम क्या करते हैं, हम 2 मार्क्स है में से, we count the rate from the living or fresh wood and compare the result with the sample to find out the age। For example, कार्बन डेटिंग के अंदर हम लोग कार्बन की प्रेजेंस को चेक करते हैं, हमें कार्बन की हाफ लाइफ ऑलरेडी वी नो, और द हाफ लाइफ ऑफ कार्बन, सो
जैसे वो हमने अभी रिसेंटली क्वेश्चन किया था ना, दो काउंट रेट्स होते हैं, एक फ्रेश सैंपल का फॉर एग्जांपल 200 है, इसका इसका जो है हमारे पास जो है शायद 12.5 आ गया। सो विल फाइंड आउट कि कितनी नंबर ऑफ हाफ लाइफ जो है वो पास आउट हो चुकी हुई है। एंड जब नंबर ऑफ हाफ लाइफ होंगी उनको हम टाइम हाफ लाइफ से मल्टीप्लाई करेंगे एंड विल गेट टू फाइंड आउट द एज ऑफ द दैट। पहला पहला प्लैनेट कौन सा आएगा इसमें? मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। उसने कहा मार्स की ऑर्बिटल स्पीड कैलकुलेट करनी है। ऑर्बिटल पीरियड भी उसने हमें दिया हुआ है, डिस्टेंस भी दिया हुआ है। विल जस्ट सिंपली पुट इट इन द फॉर्मूला 2 पाई RS 2.3 into 10 raised to power 8 over 5.9 into 10 raised to power 7. This would give us a value of, वही आ रहा है 20। Okay, so the answer came out to be 24 kilometers per second. They have asked us to find out the relationship between planets from the sun and its orbital period. डिस्टेंस एंड ऑर्बिटल पीरियड का उसने रिलेशनशिप डिस्कस करने को बोला हुआ है। तो हम लोगों ने कल ही पढ़ा था कि फर्दर अवे the planet, greater would be the orbital period। मतलब जितना ज्यादा दूर होगा उतना ही ज्यादा टाइम रिक्वायर्ड होगा उसको अपना एक पीरियड कंप्लीट करने के लिए। लकीली एंड अच्छा हुआ कि कल हम लोगों ने ये लेक्चर पहले ही से ही सारे रिवाइज किए हुए थे, मतलब कल हमने इन सब कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया। दैट इज व्हाई वी कैन रीच टू द आंसर्स क्विकली। एंड नेक्स्ट इज के डिस्क्राइब रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड द एवरेज सरफेस टेम्परेचर। जितना ज्यादा, ये इसका क्या आंसर होगा? व्हाट कम्स टू योर माइंड हफ्सा, कि डिस्टेंस जितना एंड ज्यादा टेम्परेचर का क्या रिलेशनशिप होगा? जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना कम टेम्परेचर होगा। यस, further away the planet, cooler the surface would be, except for Venus. Due to greenhouse gases. How do we know that? कि हम लोगों ने जब उसका टेम्परेचर चेक किया तो वीनस का टेम्परेचर जो था 464 था, वेरस मरकरी का टेम्परेचर 167 था। एक्सेप्ट दिस, बाकी सबके टेम्परेचर जो है एवरेज टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज हो रहा है एज फर्दर गोइंग। एंड व्हाई डू वीनस हैज दिस काइंड ऑफ अ बिहेवियर? बिकॉज ग्रीन हाउस गैसेस आर वेरी मच इन अबंडेंस देयर। तो इस वजह से उसका एवरेज टेम्परेचर जो है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द प्लैनेट्स। बिकॉज सर्टेन प्लैनेट्स हैव सर्टेन प्रॉपर्टीज जिनकी वजह से वो जो है, जैसे एस्ट्रॉइड बेल्ट है हमारे पास जुपिटर के अगेंस्ट, इस तरह वीनस के पास ग्रीन हाउस गैसेस बहुत ज्यादा हैं जिसकी वजह से उसका एवरेज टेम्परेचर जो है वो बिगर है देन द रेस्ट ऑफ द वो। दैट वाज द गीगा मोलर काउंटर व्हिच वी वर डिस्कसिंग अबाउट। स्पेलिंग वैसे मैंने सही लिख दिए थे, गीगा मोलर काउंटर। एंड बैकग्राउंड रेडिएशन वो ओके। अगेन उससे लाइट ईयर पूछा हुआ है कि व्हाट इज द लाइट ईयर, हम डिस्कस कर चुके हैं। डायमीटर ऑफ द मिल्की वे अब तो याद हो गया होगा, क्या होता है अफसा? जी। 105 100,000। एंड रेड रेड सुपर जायंट के बाद कौन सा आता है अब्दुल रहमान? सर सुपरनोवा। यस, वी हैव सुपरनोवा।
एंड सुपरनोवा के बाद कौन सी दो चीजें आती थी हमारे पास? न्यूट्रॉन स्टार एंड न्यूबेला। सुपरनोवा। बिकॉज बाकी तो प्रोटोस्टार, रेड जायंट, व्हाइट डवार्फ तो होते ही नहीं है ना, लीविंग अस विद दीज ऑप्शंस। और इसके बाद हैवीएस्ट एलिमेंट किस में बना था, कल हमने डिस्कस किया था हफ्सा? हैवीएस्ट एलिमेंट किस स्टेप में फॉर्म्ड होता है? सुपरनोवा। आई वॉज डिस्कसिंग अबाउट दिस वर्कशीट के हमने ये क्वेश्चंस किए हुए। Scientists are understand that the universe began 14 billions of years ago in an event known as Big Bang. Explain one observation that supports the Big Bang theory. कल ही हमने पढ़ा है, कौन सी चीज सपोर्ट करती है बिग बैंग थ्योरी को? CMBR। यस, CMBR और रेडशिफ्ट। ऑब्जर्वेशंस में हम लोग क्या लिखेंगे हमारे पास के present in universe indicates that the wavelength has red shifted to microwave region due to billion of years of travel. This indicates that universe is expanding and becoming cooler. CMBR, cosmic microwave background radiations, indicates that these rays are always present in the space, which indicates that the wavelength has redshifted into the microwave region, and also indicates that the universe is continuously expanding and is becoming cooler. एक दो चीजें हमें यहाँ से पता चलती हैं कि एक्सपेंड हो रहा है और वो कूलर हो रहा है, क्योंकि उसका फ्यूल इवेंचुअली जो है वो यूज अप हो रहा है हमारे पास। Let's review a few of the more questions and then we'll call it off. हाँ जी, पहला क्वेश्चन। अर्थ कौन सी चीज इंडिकेट हो रही है इसमें? अर्थ कौन सा इंडिकेशन है इसके अंदर हमारे पास? मून इसमें कौन सा होगा? सी। और सन हमारे पास क्या होगा? ए। उसने which of these causes the season on the earth? Season, which, why do we get the seasons? The earth axis is tilted. The earth takes 365 days to orbit the sun. और द मून ऑर्बिटिंग द अर्थ, द पुल ऑफ द ग्रेविटी। नो, ये दोनों तो ऑप्शन नहीं होंगे, ये भी नहीं होंगे, लिविंग अस विद ओनली वन ऑप्शन, द अर्थ tilted, एक्सिस इज tilted, seasons to earth। अच्छा, उसने ये भी बोला हुआ है कि टू शो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स दैट कीप्स द ऑब्जेक्ट बी मूविंग इन इट्स ऑर्बिट। तो टू object B is moving due to A, to force of gravity is always inward, तो हम लोग एरो टुवर्ड्स ए लगा देंगे। अगर वो सी का बोलता तो सी का एरो हम विद रिस्पेक्ट टू बी बनाते, बिकॉज बी की ग्रेविटेशन पुल जो है वो सी को अपने अराउंड रोटेट कर रही है। हाउ लॉन्ग इट टेक फॉर मून टू कंप्लीट इट्स ऑर्बिट, हमने अभी ये किया 1 मंथ। प्लैनेट्स ऑर्बिट द सन। नेम अदर टू ऑब्जेक्ट्स, कल हमने पढ़े थे, कौन से टू होते हैं?
एस्ट्रॉइड्स एंड मीटरॉइड्स। फिर स्पेलिंग्स भूल गए मुझे, बट आई गेस यही होता है। गैस जाइंट्स कौन से दो हैं अरहम? दो तो ज्यादा है, जुपिटर, सैटर्न या यूरेनस और नेपच्यून। यूरेनस और नेपच्यून। एनीथिंग आफ्टर अर्थ जो है वो हमारे पास क्या आ जाता है? जुपिटर, यूरेनस, नेपच्यून, वो सब उसी में आ जाते हैं। ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है? कल हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ डिपेंड्स ऑन व्हाट फैक्टर? फर्स्ट उसने बोला हुआ मास के ऊपर, हाउ लॉन्ग the planet takes to orbit the sun, height above the surface planet, speed or distance. The only logical option is greater the mass of the object, greater the gravitational pull would be. So only the right option is A. अब उसने लाइट ट्रेवल हम लोगों को दिया हुआ है। Strength of gravitational field, strength, the speed of the planet orbits the sun, ये भी द हाइट अबव द सरफेस प्लैनेट। आई गेस सी भी ऑप्शन इसमें ऐड होगा। तो जितनी ज्यादा उसकी डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ होगा, प्लैनेट होगा, उस पर उतनी ही लेसर जी डिपेंड करेगा। तो सी भी डिपेंड करेगा उस पर हमारे पास। बिकॉज अगर ये सन है, एक प्लैनेट यहाँ पे और एक प्लैनेट यहाँ पे, किस पे जीपी ज्यादा होगी? अफसा, जीपी क्या डिपेंड करेगी डिस्टेंस के ऊपर कि नहीं? करेगी। सो दैट इज व्हाई वी चोज ऑप्शन नंबर ए एंड सी। मास कितना है एंड उसकी हाइट फ्रॉम द प्लैनेट कितना है, दीज टू वुड अफेक्ट इट। अच्छा जी, ये तो टाइम था। तो टाइम किसके इक्वल होता है? डिस्टेंस ओवर स्पीड के। डिस्टेंस 1.5 इंटू 10 to the power 11, और स्पीड कितनी थी? 3 इंटू 10 to the power 8। वैल्यू पुट किया, हमारे पास आंसर क्या आ गया? सब यूनिट्स कन्वर्टेड है, सो 500 सेकेंड्स। अब उन्होंने हमसे पूछा हुआ है, अर्थ टेक्स 365 days to orbit the sun. Calculate the number of seconds. Seconds में जाने के लिए हमने बहुत दफा किया हुआ है। 365 multiplied by 24 multiplied by 60 multiplied by 60. This gives a value of 3.15 into 10 raised to the power 7 seconds. अब उन्होंने हमें रेडियस दिया हुआ है एंड टाइम उन्होंने कहा है यूज करें प्रीवियस पार्ट में टू कैलकुलेट द ऑर्बिटल स्पीड। तो क्या फॉर्मूला होता है? 2 pi r/t है। 2 pi r 1.5 into 10 raised to the power 11 over t, which is 3.15 into 10 raised to the power 7. We get, उन्होंने यूनिट्स दिए हैं मीटर्स पर सेकेंड। ओके, हमें कुछ कन्वर्ट नहीं करना, जो आंसर आएगा हमने एज इट इज लिख देना। we're getting 2.99 into 10 raised to power 4। उसने हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स दिए हुए थे। हाँ, हमने यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट ही लिखे हैं, शुक्र है। और यहाँ पे भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर ही हैं। कल हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था, क्लोजर टू सन हैव हायर ऑर्बिटल स्पीड्स देन दोज प्लैनेट्स दैट आर फर्दर अवे फ्रॉम द सन। इसका रीजन क्या होगा? सन ग्रेविटेशनल pull is stronger closer on closer planets. That's why orbital speed is greater. अब उन्होंने हमसे पूछा हुआ है, the average distance from the sun is 4.5 times per 12.
how many times longer it takes the light to travel from the sun to Neptune and then from the sun to Earth. सबसे पहले तो हम इसका टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितना बन रहा है, वही फॉर्मूला लगा के। डिस्टेंस ओवर स्पीड का, डिस्टेंस इज 4.5 इंटू 10⁻12। स्पीड ऑफ लाइट हमारे पास कांस्टेंट होती है 3 × 10⁸ विल गेट 15,000 सेकेंड्स। एंड अर्थ का टाइम हमारे पास कितना निकला था यहाँ पे, हमने ये भी कैलकुलेट किया था कहीं पे, ये 500 सेकेंड्स। तो इन दोनों का आपस में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे टू फाइंड आउट द रेशियो। 15,000 डिवाइडेड बाय 500, तो ये 300 से कैंसिल आउट हो गया, 30 बन जाएगा। सो इट वुड टेक 30 टाइम्स लॉन्गर फ्रॉम फॉर लाइट टू रीच फ्रॉम द नेपच्यून टू सन। हाँ जी, पोजीशन ए के ऊपर कौन सा सीजन होगा, व्हाट कम्स टू योर माइंड? फिर समर होगी। हाँ, विंटर होगी, बी तो समर होगी। ओ नहीं, समर विंटर होगा। होगी, विंटर। अरे भाई, दैट इज फेसिंग द सन। बी इज अवे, तो जो फेस कर रहा होता है वहां पे क्या आएगा, विल गेट समर हियर। नॉर्थ नॉर्थ हेमिस्फीयर में बोला था, और हम बात की बस बी तो अवे फ्रॉम द सन है ना, फेसिंग द यार, सन कौन कर रहा है, ए। Positions A and B in the figure have different daytime temperature. Explain why. Because of the tilt, clearly. Because of the tilt. B जो है वो हमारे पास जो है वार्मर होगा। Sorry, A would be warmer than B. Tilt of 23.5 degrees, A would be warmer than B. मून को हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ, इट टेक्स 1 month फॉर इट टू कंप्लीट द ऑर्बिट। ये हमने डिस्कस किए हुए हैं। ओके, अब उन्होंने हमें क्या फाइंड आउट करने को बोला हुआ है, साइंटिस्ट यूज लाइट टू मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द मून। लाइट इज sent from the earth to the moon. In one experiment, difference time light being sent and being received by the sensor is 2.55. Use this information to calculate the distance from the earth to the moon. तो डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, स्पीड इनटू टाइम के। स्पीड की वैल्यू कांस्टेंट है 3 × 10⁸ और टाइम उसने हमें दिया हुआ है 2.55। तो मल्टीप्लाइंग इट वुड इज गिविंग अस 7.6 × 10⁸ एंड अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, अच्छा ये सेंट एंड रिसीव्ड दोनों है, तो हमने डिस्टेंस को उसको डिवाइडेड बाय 2 कर देना है टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वो एको वाला जो हमारे पास फॉर्मूला होता है 2D/T वाला। सो विल हैव 3.83 × 10⁸। मैंने 2 से क्यों डिवाइड किया, डिड यू गाइस गेट इट? बस उसने हमें ये जो 2.55 का टाइम पीरियड दिया हुआ था ना क्वेश्चन के अंदर, इट वाज ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग। तो हमें जस्ट डिस्टेंस ऑफ अर्थ टू मून फाइंड आउट करना था एंड नॉट द अदर वे अराउंड एज वेल। तो हमने विल डिवाइड इट विद द वैल्यू ऑफ 2। उसने कहा है कि द रिफ्लेक्टेड रिमेन्स इन द सेम पोजीशन ऑफ द मून, द लाइट सोर्स एंड सेंसेस रिमेन्स इन द सेम पोजीशन। Why are we getting a slighter value? Because
इसका रीजन क्या होगा हफ्सा? व्हाट कम्स टू अब्दुल रहमान बताएं, व्हाई आर वी गेटिंग अ स्लाइटली डिफरेंट वैल्यू? इसको हमने कल ही डिस्कस किया था, बल्कि हफ्सा आप बता दें जल्दी से, उसने तो 15 मिनट लगा देने। व्हाई आर नहीं वी आ रहा। गेटिंग हमने कुछ डिस्कस किया था विद रिस्पेक्ट टू द पाथ। हमारे पास क्या होता है? कॉस। इलिप्टिकल। हाँ, कॉस पाथ इज elliptical, that is why we get slightly different value. What does the universe contain? कल हमने उसकी definition भी किया था। Everything that we can observe. What the star closest to Earth is Sun. The galaxy that contains the solar system, उसको क्या कहते हैं? मिल्की वे। लाइट ईयर हमने मल्टीपल टाइम्स किया हुआ है। क्लोजेस्ट हमारे पास कौन सी है? अच्छा, उसने एंड्रोमेडा। ऑप्शन हमें दिया हुआ है, विच इज हाउ मेनी लाइट ईयर्स? हमारे पास कितना है? क्लोजेस्ट 25। गैलेक्सी बोला हुआ है उसने, स्टार नहीं पूछा हुआ, गैलेक्सी पूछा हुआ है, विच इज 25,000 लाइट ईयर्स अवे है हमारे पास। अब हमारे पास साइज ऑफ मिल्की वे 100,000, क्लोजेस्ट स्टार 4.2 एंड क्लोजेस्ट गैलेक्सी 25,000 लाइट ईयर्स। अब कोई गिला नहीं होगा कि भाई हमें ये वैल्यूज नहीं पता थी। यूनिवर्स की डेफिनेशन हम अभी भी डिस्कस कर चुके हैं, एवरीथिंग दैट वी कैन ऑब्जर्व and the light from a distant galaxy shows redshift. This is the evidence that galaxies are receding, contracting, approaching, or staying the same size. Redshift हमें रिसीडिंग। क्या बताता है? Receding. This in turn is evident that universe is expanding. और ये हमने वैसे कल भी लिख दिया था, everything that we can observe. ये रिपीट हो गया है। क्लोजेस्ट हमारे पास जो है शो दैट लाइट ईयर हमने कल भी कैलकुलेट किया था। 1 लाइट ईयर इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, which is 3 into 10 raised to power 8 times 365 times 24 times 60 times 60. This would give us a value of 9.5 into 10 raised to power 15 meters, or 9.5 into 10 raised to power 12 kilometers, अगर आप किलोमीटर में जाना चाहते हैं। Then how a protostar is formed? प्रोटोस्टार कैसे फॉर्म्ड होता है? कल ही हमने पढ़ा था, a cloud of interstellar dust and gas clumps together due to gravity, forming protostar. Describe the next stage in star day after the size runs out of हाइड्रोजन फिल। अब उस समय को फिक्स्ड वैल्यू नहीं बताएगी, तो हम लोग कह देंगे इट टर्न्स इनटू अ into red giant. Light from distant galaxies shows redshift. This is evidence that galaxies are moving away from us. And universe is expanding. नेक्स्ट में उसने हमें v वर्सेस d का ग्राफ बनाने को बोला है, और वो हमारे पास कौन सा होता है? स्ट्रेट लाइन। कल हम लोगों ने देखा भी था। एंड ग्रेडियंट ऑफ दिस ग्राफ गिव्स अस हबल्स
constant. So I hope these questions would help you to understand the space physics even more. So I'll send you another worksheet that you can practice on to make sure that everything is clear to you.